Good morning, students. We are continuing with our fourth chapter. Today, we will start up with question number 8. In question number 8, the transactions are related to bank. Before we start it practically, let us explain you few of the transactions relating or pertaining to the bank. The first case is when cash is deposited into the bank. When the businessman deposits some cash into the bank, the cash balance from the business reduces. Vice versa happens into the bank. The bank balance increases. As per the rule of debit and credit, cash is going out of the business. As cash goes out, हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? विल क्रेडिट इट. एंड बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. सो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया एंड बैंक इज अवर artificial legal entity. As per the type of account, it is our personal account and bank is receiving the amount what businessman is depositing, so we will debit the bank. Next is case number 2, when business owner withdraws the cash from bank. जब हम पैसा बैंक से निकलवाने के लिए जाते हैं तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ जाता है और बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. उस टाइम पे बैंक हमारी गिवर हो जाती है और कैश बिजनेस के अंदर आया. डेबिट व्हाट कम्स इन एज पर द रूल, हम कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्या करेंगे? क्रेडिट, बिकॉज बैंक इज द गिवर एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. The next one is when we receive the check and the check is deposited into the bank. हमको चेक मिला और हमने चेक को क्या कर दिया है? बैंक में डिपॉजिट कर दिया है. बट ऑब्वियस है कि जैसे ही आप बैंक में चेक को डिपॉजिट करेंगे आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. बैंक बैलेंस जैसे इंक्रीज हो जाता है दैट मीन्स बैंक आपकी रिसीवर हो रही है. सो एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल बैंक को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. And whosoever is the giver, your customer or any other person, आप उसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. Because as per the rule again of personal account, that particular customer will become the giver. Next is opposite to check received. If we are doing payments, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे बैंक आपकी क्या बन जाती है? गिवर बन जाती है. So what you will do? You will credit your bank account because bank balance आपका उतना reduce हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप किसी सामने वाले को क्या कर रहे हैं? चेक दे रहे हैं. You are making any of the payments. So bank becomes the giver. The person who is receiving that particular check will be debited. उसके अकाउंट को अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे because as per the rule debit the receiver. All these things are practically also explained in question number 8. Don't worry if you are not getting right now because this is for the first time and that also you are learning the theory. आप practically जब देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा question number 8 में. The next point is bank interest. Bank interest means what? When bank is crediting interest in the bank account of businessman, businessman obtains this information from bank passbook और bank statement. इसका मतलब क्या हुआ? businessman को interest मिला है, so that's why बैंक में पैसा आया. बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है. आपको इंटरेस्ट बैंक कैसे देगी? आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देगी उतना ब्याज जो भी आपको मिला होगा. तो बैंक आपकी क्या बन जाएगी? रिसीवर बन जाएगी और इंटरेस्ट एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट वन इज बैंक चार्जेस. आप एटीएम वगैरह यूज करते हैं तो बैंक आपसे चार्जेस वसूल करती है. बैंक आपको फ्री में वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवाती है. सो बैंक डेबिट्स दी चार्जेस. जैसे ही बैंक ने डेबिट किया है बैंक चार्जेस अकाउंट एज पर दी नॉमिनल अकाउंट वो एक्सपेंस माना जाता है. इसके लिए आप बैंक चार्जेस
को डेबिट करेंगे एंड बैंक उसकी गिवर बनेगी। आप उस चार्जेस को पे करोगे। किसको पे करोगे? आप बैंक को दोगे। दैट्स व्हाई बैंक विल बिकम योर गिवर। Okay students, coming on to the next question, question number 8. Write journal entry for Krishna for the following transactions. So we will write the heading journal entries in the books of Krishna. The date is given 2014 March, first date. Rupees 20,000 deposited with bank and opened the account. What we have done, we have deposited rupees 20,000 into the bank and we have opened our account. As if we are opening the account in the bank, bank is becoming the receiver and cash is going out of the business. So who is the receiver? Bank is the receiver. Bank account debit to cash account of rupees 20,000 next date 5 a check of rupees 5,000 received from Hari which immediately deposited with bank। हमको हरी से 5,000 रुपीस का चेक मिला है जिसको हमने क्या कर दिया है? बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। As if we have deposited the same particular check into the bank, bank is becoming the receiver of that amount. So bank account debit to Hari's account. Okay students, bank is our artificial entity. So as per the rule of personal debit the receiver and Hari is the giver, again personal rule credit the giver। So बैंक में कितने का चेक हमको मिला है? That is of rupees 5,000। तो डेबिट के कॉलम में जहां पे बैंक है वहां पे सामने 5,000 और क्रेडिट के कॉलम में जहां पे आपका हरी है वहां पे सामने 5,000। Coming on to the next transaction, that is 6. A check of 2,000 received from Ramnik Lal for dues। हमको 2,000 रुपीस का रमनिक लाल से चेक मिला है फॉर ड्यूज। हम उससे कुछ पैसे मांगते थे, उसके अगेंस्ट में रमनिक लाल आज हमको 6th डेट को क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। सो थ्रू चेक वी आर रिसीविंग, though it is not mentioned that the check is deposited into the business, we will consider like that only check is being deposited। Okay students, so bank is the receiver again, bank account debit to Ramnik Lal account of how much amount? That is of rupees 2,000। Okay, next transaction dated 10. Goods sold to Rupali for 14,000 out of which check received for half amount which is deposited into the bank। Now हमने रूपाली को 14,000 रुपीस से गुड्स बेचे हैं। Now please make note of this। Now यहाँ पर जो 14,000 है that is being split into two classifications। Half transaction is your cash transaction and half transaction is your credit transaction। 14,000 का हाफ कितना हुआ? 7,000 and next हाफ कितना हुआ उसका? सेम 7,000। हमने क्या किया है? रूपाली को 14,000 के गुड्स बेचे हैं जिसमें से 7,000 का चेक हमें मिल गया है। दैट मीन्स ये अमाउंट में क्या हुआ है? बैंक के थ्रू हमें चेक मिल गया है। दिस 7,000 विल बी ट्रीटेड एज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो यहां पे क्या आएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा नाम आता है दैट इज रूपालीज अकाउंट। सो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, हमको बैंक में चेक मिला है और चेक हमने डिपॉजिट भी कर दिया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट
and another will be Rupali's account debit because Rupali becomes our debtor. फ्यूचर में जाके रूपाली से हमें 7,000 रुपीज मिलने वाले हैं. 2 क्या किया है हमने? सेल्स किया है, गुड्स गोज आउट. 7,000 and here comes is total sales हमने कितने का किया है? 14,000 का. So like this way it is the classification of half credit and half cash transaction. दो यहां पे हमने कैश यूज नहीं किया है जस्ट बिकॉज वी हैव रिसीव्ड चेक थ्रू रूपाली. इसके लिए हम बैंक यूज कर रहे हैं बट बैंक वाला भी कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा. To transaction dated 12, vice versa to that, but the method or content remains the same. Goods of rupees 10,000 purchased from Deep Kala and paid half amount by check. हमने क्या किया है? दीप कला से 10,000 का परचेजिंग किया है. Goods are coming into the business. जब कभी भी गुड्स बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट. कितने का परचेजिंग हम कर रहे हैं? वी आर मेकिंग परचेज ऑफ 10,000. हाफ ट्रांजेक्शन इज योर कैश ट्रांजेक्शन, हाफ ट्रांजेक्शन इज योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन. हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो 50% कितना हुआ? 10,000 का, दैट इज ऑफ रुपीज 5,000. और ये 50% हमारा कितना हुआ रिमेनिंग? दैट इज अगेन ऑफ 5,000 रुपीज. Okay students, so this is your credit transaction. Fine. This is your cash transaction. कैश ट्रांजैक्शन में बैंक के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया है. ये 5,000 हम फ्यूचर में जाके पे करेंगे. सो हम किससे खरीद रहे हैं? दीप कला से खरीद रहे हैं. दीप कला विल बिकम आवर क्रेडिटर. यहाँ पे किसका नाम आएगा? दीप कला का. Okay students, got it? So like this way we are going to post the entry purchase account debit to bank account because bank is the giver. हमने चेक दिया है तो बैंक becomes the giver. यहाँ पे purchase में goods comes in और to दीप कला just because दीप कला हमारी क्या हो गई है? क्रेडिटर हो गई है. हमें फ्यूचर में जाके उसको पैसा देना है. So that's why we have credited to दीप कला. टोटल परचेजेस हमने कितने के किए थे? 10,000 रुपीज के. सो परचेज में कितना आएगा? 10,000. बैंक में चेक कितने का था? 5,000. एंड 5,000 का क्या है हमारा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोथ इन वन itself. Now coming on to the 15th transaction, that is rupees 400 withdrawn from bank for personal use or personal expense and 800 for office expense. आपको हर बार एक ही बात बताई गई थी कि पर्सनल एक्सपेंस मींस ड्राइंग्स. मेक श्योर ऑफ दिस थिंग. हमने विड्रॉ किए हैं, उनका हमने यूटिलाइजेशन किया नहीं है. सो एक जगह पे हम क्या बताएंगे कि हमने गुड्स विड्रॉ, हमने कैश विड्रॉ किया है. कहां से? बैंक में से. किस चीज के लिए? एक तो पर्सनल यूज के लिए किया है और दूसरा ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉवल सिर्फ हुए हैं. वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड दैट अमाउंट. ना तो 400 रुपए हमने यूज किए हैं, ना ही हमने 800 रुपीज यूज किए हैं. सो बैंक में से हम क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं. सो अगर पर्सनल यूज के लिए अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं कुछ अमाउंट बैंक में से तो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ड्राइंग्स अकाउंट. पर्सनल यूज के लिए हमेशा ध्यान रखने का ड्राइंग्स अकाउंट. फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है? बैंक में से विड्रॉ किया है ऑफिस एक्सपेंस के लिए, पर ऑफिस एक्सपेंस अभी तक हमने किया नहीं है. सो दैट्स व्हाई हम लिखेंगे कैश अकाउंट टू बैंक because bank is the giver as per the personal rule. ड्राइंग्स में कितना आएगा? 400 रुपीज और 800 for office expense. Total comes to 1200.
सो प्लीज स्टूडेंट्स मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट। कैश में यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस के लिए सिर्फ विड्रॉ किया है हमने, ऑफिस एक्सपेंस अभी तक इनकर किए नहीं है। कमिंग ऑन टू द 18th ट्रांजैक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 300, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 450 पेड बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ वर्ड आ जाता है तो इट विल इंडिकेट योर ड्राइंग। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, किसके थ्रू हम पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग थ्रू चेक, सो टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कितने का है? 300 का। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑफ 450, so total comes to 750. Okay students, now coming on to the next transaction, 20th, bank has approved overdraft of 25,000. बैंक ने सिर्फ अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है हमारे और बैंक के बीच में, so this will be treated as your non-economic transaction. Okay students, this is your non-economic transaction. Moving further on 25th transaction, bank has credited interest of rupees 250. First, we will solve this much only. Bank has credited interest. I have taught you earlier as well. बैंक ने हमें क्रेडिट किया है, हम बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक में इंटरेस्ट हमें मिला है, so interest will be your income as per the nominal account. So bank is the receiver, so bank account debit to bank interest account. How much? That is of rupees 250. बैंक ने क्रेडिट किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे, बिकॉज बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया। दैट मीन्स बैंक हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। नेक्स्ट, इसी का 25th का सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? डेबिटेड बैंक चार्जेस रुपीस 100। बैंक क्या कर रही है? चार्जेस हमसे वसूल कर रही है। चार्जेस अगर हमसे वसूल कर रही है, दैट मीन्स बैंक ने हमें डेबिट किया है, हम बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस हैं, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम दे रहे हैं, हमारे अकाउंट में से वो पैसा जा रहा है, दैट्स व्हाई बैंक विल बिकम द गिवर ऑफ रुपीस 100। Moving further on transaction last, that is dated 31. A check of 5,000 issued for foreign visit of son of owner from business. मालिक का बेटा फॉरेन घूमने के लिए जा रहा है, इसके लिए हमने चेक कितने का बनाया? 5,000 का। अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉवल्स होते हैं तो दोज आर ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू है, इसके लिए टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 5,000 rupees. Okay, so this was your question number 8. And your today's task is from page number 103 question number 8, and from page number 70 you are supposed to solve illustration number 6. Thank you students.